YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Berarkan. Ha. Mayli, borib ol. Tushunmadim. Nima? Yo'l torlik qildimi? Menga qara. Yana xotinim molda o'rlashsang, ko'radiganingni ko'rasan. Qara, senga ko'rsatib qo'yaman. Nimani ko'rsatib qo'yasan? Tushundingmi? Boshqa yo'limdan chiqmagan. Agar yo'limdan chiqsang, o'lding. Tushundingmi? Hali sen iflos bilan gaplashamiz. Ishamiz. Anavi labi do'rdog'ni qayerdan topdingiz? Anavi Dildorani aytyapsizmi? menga umuman yoqmaydi. U meni do'stimni qizi. Daday menga anavi Sex ochib beryaptilar. Qanaqa sex? Bekor yurmasin, ish bilan band bo'lsin. Rahbarxon anavi nima bo'lib yursam, nimasi yomon? Shuncha pul yo'qotganimiz yetmadimi? Meni deb ketdi. anavi Yaqinda meni olib ketsa kerak. Men ham bo'pti, malikalardek yashayman deb ishlamasdan uyda o'tirdim. do'stingiz kim? Nima? Lekin endi fikrlarim o'zgardi. Hayotda maqsad bo'lishi kerak ekan. Do'stingiz kim? Men Nima? maqsadimni yo'qotib qo'ygan ekanman. Endi o'zimga keldim. To'g'ri. O'zi anavi nima ish qiladi? Kelib chiqishi oshpaz. Hozir qimorvoz. Do'stingiz kim?
جی ناظرین، جو ڈرامہ کیچر یہ کافی ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں جو بزرگ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی جو گھر والی ہوتی ہے وہ تیار ہو کے کہیں شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تیار ہونے کے بعد اس کو ایک کال آ جاتی ہے، وہ کال پہ مصروف ہو جاتی ہے اور ادھر انکل اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کب فارغ ہوگی اور ہم شادی پہ چلیں گے۔ اس کی کال آتی ہے، وہ لمبی بات کر رہی ہوتی ہے اور انکل کی نظر ادھر ہی ہوتی ہے، وہ بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کب کال کرے گی اور ہم دونوں جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ دروازہ کھولتی ہے، اندر جاتی ہے۔ اندر جانے کے بعد اس کو دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کیا بتا رہی ہوتی ہے فون پر کے۔ اس کے بعد کال سننے کے بعد وہ باہر آتی ہے، باہر آنے کے بعد دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے۔ کال پہ وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں آنے والے تھے اور آپ کی کال آ گئی۔ کال سننے میں وہ بتاتی ہے کہ ہم آپ کی طرف ہی آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو، بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ آنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست وغیرہ، وہ بولتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ان کو آنے دو۔ وہ بولتے ہیں ان کو آنے دو، اس کے بعد کھانا لگانا، کھانا ہم سب مل کے کھائیں گے، بس وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج کھانا بہت اچھا بنانا اور تم ان کا انتظار کرنا اور تاکہ وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ یہ سن کے اس کی بیگم خوش ہو جاتی ہے، چلو اس نے کوئی تو اچھی بات کی ہے، ورنہ یہ تو ہر وقت منہ بناتا رہتا ہے۔ وہ آپس میں خوش ہوتے ہیں، بولتے چلو ایک کپ پانی پلا دو یا مجھے کافی بنا کر دے دو۔ وہ بولتے ٹھیک ہے، یہ لو کافی تو بنی ہوئی ہے، میں ابھی آپ کو کافی دے دیتی ہوں۔ کافی دینے کے بعد وہ دیکھتی ہے اس کی طرف اور اس کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے۔ چوٹ لگنے کے بعد وہ بولتے ہیں یہ کیا ہوا، تمہاری آنکھ کے اوپر تو نشان بنا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ بولتی ہے کچھ بھی نہیں، پریشان نہ ہو، بس معمولی سے چوٹ ہے، ہم لوگ ابھی چلتے ہیں۔ جیسے وہ جانے کے تیار ہوتے ہیں، دوسری جانب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب آئیں گے اور کب ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ دوسری جانب ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے، دیکھیں وہ کب آئیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے۔ اتنی دیر کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں، بولتے آ جاؤ چلے آگے دیکھو کیا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، جو ڈرامہ کیچر یہ کافی ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں جو بزرگ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی جو گھر والی ہوتی ہے وہ تیار ہو کے کہیں شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تیار ہونے کے بعد اس کو ایک کال آ جاتی ہے، وہ کال پہ مصروف ہو جاتی ہے اور ادھر انکل اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کب فارغ ہوگی اور ہم شادی پہ چلیں گے۔ اس کی کال آتی ہے، وہ لمبی بات کر رہی ہوتی ہے اور انکل کی نظر ادھر ہی ہوتی ہے، وہ بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کب کال کرے گی اور ہم دونوں جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ دروازہ کھولتی ہے، اندر جاتی ہے۔ اندر جانے کے بعد اس کو دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کیا بتا رہی ہوتی ہے فون پر کے۔ اس کے بعد کال سننے کے بعد وہ باہر آتی ہے، باہر آنے کے بعد دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے۔ کال پہ وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں آنے والے تھے اور آپ کی کال آ گئی۔ کال سننے میں وہ بتاتی ہے کہ ہم آپ کی طرف ہی آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو، بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ آنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست وغیرہ، وہ بولتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ان کو آنے دو۔ وہ بولتے ہیں ان کو آنے دو، اس کے بعد کھانا لگانا، کھانا ہم سب مل کے کھائیں گے، بس وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج کھانا بہت اچھا بنانا اور تم ان کا انتظار کرنا اور تاکہ وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ یہ سن کے اس کی بیگم خوش ہو جاتی ہے، چلو اس نے کوئی تو اچھی بات کی ہے، ورنہ یہ تو ہر وقت منہ بناتا رہتا ہے۔ وہ آپس میں خوش ہوتے ہیں، بولتے چلو ایک کپ پانی پلا دو یا مجھے کافی بنا کر دے دو۔ وہ بولتے ٹھیک ہے، یہ لو کافی تو بنی ہوئی ہے، میں ابھی آپ کو کافی دے دیتی ہوں۔ کافی دینے کے بعد وہ دیکھتی ہے اس کی طرف اور اس کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے۔ چوٹ لگنے کے بعد وہ بولتے ہیں یہ کیا ہوا، تمہاری آنکھ کے اوپر تو نشان بنا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ بولتی ہے کچھ بھی نہیں،
परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के तैयार होते हैं, दूसरी जानिब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम लोग खाना खाएंगे। दूसरी जानिब उनके बच्चे होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी है, देखें वो कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। इतनी देर के बाद वो उठते हैं और चलते हैं, बोलते आ जाओ चले आगे देखो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, जो ड्रामा कीचड़ ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं जो बुज़ुर्ग होता है वो बैठा होता है, उसकी जो घर वाली होती है वो तैयार होकर कहीं शादी पे जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद उसको एक कॉल आ जाती है, वो कॉल पे मसरूफ़ हो जाती है और उधर अंकल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कब फारिग होगी और हम शादी पे चलेंगे। इसकी कॉल आती है, वो लंबी बात कर रही होती है और अंकल की नज़र उधर ही होती है, वो बार बार देख रहा होता है ये कब कॉल करेगी और हम दोनों जाएंगे। इतनी देर में वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसको दोबारा फिर कॉल आ जाती है, वो उसको पता नहीं क्या बता रही होती है फ़ोन पर के। उसके बाद कॉल सुनने के बाद वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद दोबारा फिर कॉल आ जाती है। कॉल पे वो बातें कर रही होती है कि हम थोड़ी देर में आने वाले थे और आप ही कॉल आ गई। कॉल सुनने में वो बताती है कि हम आप की तरफ ही आएंगे, आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में हम लोग आने वाले होते हैं। दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनके दोस्त वगैरह, वो बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनको आने दो। वो बोलते हैं उनको आने दो, उसके बाद खाना लगाना, खाना हम सब मिल के खाएंगे, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होते हैं। वो बताते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बनाना और तुम उनका इंतज़ार करना और ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर आ रहे हैं। ये सुन के उसकी बेगम खुश हो जाती है, चलो इसने कोई तो अच्छी बात की है, वरना ये तो हर वक्त मुंह बनाता रहता है। वो आपस में खुश होते हैं, बोलते चलो एक कप पानी पिला दो या मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। वो बोलते ठीक है, ये लो कॉफ़ी तो बनी हुई है, मैं अभी आपको कॉफ़ी दे देती हूँ। कॉफ़ी देने के बाद वो देखती है बॉस की तरफ और उसको कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो बोलते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारी आँख के ऊपर तो निशान बना हुआ है, अब क्या होगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं, परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के तैयार होते हैं, दूसरी जानिब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम लोग खाना खाएंगे। दूसरी जानिब उनके बच्चे होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी है, देखें वो कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। इतनी देर के बाद वो उठते हैं और चलते हैं, बोलते आ जाओ चले आगे देखो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, जो ड्रामा कीचड़ ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं जो बुज़ुर्ग होता है वो बैठा होता है, उसकी जो घर वाली होती है वो तैयार होकर कहीं शादी पे जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद उसको एक कॉल आ जाती है, वो कॉल पे मसरूफ़ हो जाती है और उधर अंकल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कब फारिग होगी और हम शादी पे चलेंगे। इसकी कॉल आती है, वो लंबी बात कर रही होती है और अंकल की नज़र उधर ही होती है, वो बार बार देख रहा होता है ये कब कॉल करेगी और हम दोनों जाएंगे। इतनी देर में वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसको दोबारा फिर कॉल आ जाती है, वो उसको पता नहीं क्या बता रही होती है फ़ोन पर के। उसके बाद कॉल सुनने के बाद वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद दोबारा फिर कॉल आ जाती है। कॉल पे वो बातें कर रही होती है कि हम थोड़ी देर में आने वाले थे और आप ही कॉल आ गई। कॉल सुनने में वो बताती है कि हम आप की तरफ ही आएंगे, आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में हम लोग आने वाले होते हैं। दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनके दोस्त वगैरह, वो बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनको आने दो। वो बोलते हैं उनको आने दो, उसके बाद खाना लगाना, खाना हम सब मिल के खाएंगे, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होते हैं। वो बताते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बनाना और तुम उनका इंतज़ार करना और ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर आ रहे हैं। ये सुन के उसकी बेगम खुश हो जाती है, चलो इसने कोई तो अच्छी बात की है,
वरना ये तो हर वक्त मुंह बनाता रहता है। वो आपस में खुश होते हैं, बोलते चलो एक कप पानी पिला दो या मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। वो बोलते ठीक है, ये लो कॉफ़ी तो बनी हुई है, मैं अभी आपको कॉफ़ी दे देती हूँ। कॉफ़ी देने के बाद वो देखती है बॉस की तरफ और उसको कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो बोलते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारी आँख के ऊपर तो निशान बना हुआ है, अब क्या होगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं, परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के लिए तैयार होते हैं, दूसरी जानिब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम लोग खाना खाएंगे। दूसरी जानिब उनके बच्चे होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी है, देखें वो कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। इतनी देर के बाद वो उठते हैं और चलते हैं, बोलते आ जाओ चले आगे देखो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, जो ड्रामा की चर्चा काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसमें दिखाते हैं जो बुज़ुर्ग होता है वो बैठा होता है, उसकी जो घर वाली होती है वो तैयार होकर कहीं शादी पे जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद उसको एक कॉल आ जाती है, वो कॉल पे मसरूफ़ हो जाती है और उधर अंकल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कब फारिग होगी और हम शादी पे चलेंगे। इसकी कॉल आती है, वो लंबी बात कर रही होती है और अंकल की नज़र उधर ही होती है, वो बार बार देख रहा होता है ये कब कॉल करेगी और हम दोनों जाएंगे। इतनी देर में वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसको दोबारा फिर कॉल आ जाती है, वो उसको पता नहीं क्या बता रही होती है फ़ोन पर के। उसके बाद कॉल सुनने के बाद वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद दोबारा फिर कॉल आ जाती है। कॉल पे वो बातें कर रही होती है कि हम थोड़ी देर में आने वाले थे और आप ही कॉल आ गई। कॉल सुनने में वो बताती है कि हम आपकी तरफ ही आएंगे, आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में हम लोग आने वाले होते हैं। दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनके दोस्त वगैरह, वो बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनको आने दो। वो बोलते हैं उनको आने दो, उसके बाद खाना लगाना, खाना हम सब मिल के खाएंगे, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होते हैं। वो बताते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बनाना और तुम उनका इंतज़ार करना और ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर आ रहे हैं। ये सुन के उसकी बेगम खुश हो जाती है, चलो इसने कोई तो अच्छी बात की है, वरना ये तो हर वक्त मुंह बनाता रहता है। वो आपस में खुश होते हैं, बोलते चलो एक कप पानी पिला दो या मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। वो बोलते ठीक है, ये लो कॉफ़ी तो बनी हुई है, मैं अभी आपको कॉफ़ी दे देती हूँ। कॉफ़ी देने के बाद वो देखती है बॉस की तरफ और उसको कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो बोलते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारी आँख के ऊपर तो निशान बना हुआ है, अब क्या होगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं, परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के लिए तैयार होते हैं, दूसरी जानिब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम लोग खाना खाएंगे। दूसरी जानिब उनके बच्चे होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी है, देखें वो कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। इतनी देर के बाद वो उठते हैं और चलते हैं, बोलते आ जाओ चले आगे देखो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, जो ड्रामा की चर्चा काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसमें दिखाते हैं जो बुज़ुर्ग होता है वो बैठा होता है, उसकी जो घर वाली होती है वो तैयार होकर कहीं शादी पे जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद उसको एक कॉल आ जाती है, वो कॉल पे मसरूफ़ हो जाती है और उधर अंकल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कब फारिग होगी और हम शादी पे चलेंगे। इसकी कॉल आती है, वो लंबी बात कर रही होती है और अंकल की नज़र उधर ही होती है, वो बार बार देख रहा होता है ये कब कॉल करेगी और हम दोनों जाएंगे। इतनी देर में वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसको दोबारा फिर कॉल आ जाती है, वो उसको पता नहीं क्या बता रही होती है फ़ोन पर के।
اس کے بعد کال سننے کے بعد وہ باہر آتی ہے، باہر آنے کے بعد دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے۔ کال پہ وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں آنے والے تھے اور آپ کی کال آ گئی۔ کال سننے میں وہ بتاتی ہے کہ ہم آپ کی طرف ہی آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو، بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ آنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست وغیرہ، وہ بولتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ان کو آنے دو۔ وہ بولتے ہیں ان کو آنے دو، اس کے بعد کھانا لگانا، کھانا ہم سب مل کے کھائیں گے، بس وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج کھانا بہت اچھا بنانا اور تم ان کا انتظار کرنا، اور تاکہ وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ یہ سن کے اس کی بیگم خوش ہو جاتی ہے، چلو اس نے کوئی تو اچھی بات کی ہے، ورنہ یہ تو ہر وقت منہ بناتا رہتا ہے۔ وہ آپس میں خوش ہوتے ہیں، بولتے چلو ایک کپ پانی پلا دو یا مجھے کافی بنا کر دے دو۔ وہ بولتے ٹھیک ہے، یہ لو کافی تو بنی ہوئی ہے، میں ابھی آپ کو کافی دے دیتی ہوں۔ کافی دینے کے بعد وہ دیکھتی ہے اس کی طرف اور اس کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے۔ چوٹ لگنے کے بعد وہ بولتے یہ کیا ہوا، تمہاری آنکھ کے اوپر تو نشان بنا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ بولتی ہے کچھ بھی نہیں، پریشان نہ ہو، بس معمولی سے چوٹ ہے، ہم لوگ ابھی چلتے ہیں۔ جیسے وہ جانے کے تیار ہوتے ہیں، دوسری جانب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب آئیں گے اور کب ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ دوسری جانب ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے، دیکھیں وہ کب آئیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے۔ اتنی دیر کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں، بولتے آ جاؤ چلے آگے دیکھو کیا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، جو ڈرامہ کیچر یہ کافی ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے، اس میں دکھاتے ہیں جو بزرگ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی جو گھر والی ہوتی ہے وہ تیار ہو کے کہیں شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تیار ہونے کے بعد اس کو ایک کال آ جاتی ہے، وہ کال پہ مصروف ہو جاتی ہے، اور ادھر انکل اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کب فارغ ہوگی اور ہم شادی پہ چلیں گے۔ اس کی کال آتی ہے، وہ لمبی بات کر رہی ہوتی ہے اور انکل کی نظر ادھر ہی ہوتی ہے، وہ بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کب کال کرے گی اور ہم دونوں جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ دروازہ کھولتی ہے، اندر جاتی ہے، اندر جانے کے بعد اس کو دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کیا بتا رہی ہوتی ہے فون پر کے۔ اس کے بعد کال سننے کے بعد وہ باہر آتی ہے، باہر آنے کے بعد دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے۔ کال پہ وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں آنے والے تھے اور آپ کی کال آ گئی۔ کال سننے میں وہ بتاتی ہے کہ ہم آپ کی طرف ہی آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو، بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ آنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست وغیرہ، وہ بولتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ان کو آنے دو۔ وہ بولتے ہیں ان کو آنے دو، اس کے بعد کھانا لگانا، کھانا ہم سب مل کے کھائیں گے، بس وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج کھانا بہت اچھا بنانا اور تم ان کا انتظار کرنا، اور تاکہ وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ یہ سن کے اس کی بیگم خوش ہو جاتی ہے، چلو اس نے کوئی تو اچھی بات کی ہے، ورنہ یہ تو ہر وقت منہ بناتا رہتا ہے۔ وہ آپس میں خوش ہوتے ہیں، بولتے چلو ایک کپ پانی پلا دو یا مجھے کافی بنا کر دے دو۔ وہ بولتے ٹھیک ہے، یہ لو کافی تو بنی ہوئی ہے، میں ابھی آپ کو کافی دے دیتی ہوں۔ کافی دینے کے بعد وہ دیکھتی ہے اس کی طرف اور اس کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے۔ چوٹ لگنے کے بعد وہ بولتے یہ کیا ہوا، تمہاری آنکھ کے اوپر تو نشان بنا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ بولتی ہے کچھ بھی نہیں، پریشان نہ ہو، بس معمولی سے چوٹ ہے، ہم لوگ ابھی چلتے ہیں۔ جیسے وہ جانے کے تیار ہوتے ہیں، دوسری جانب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب آئیں گے اور کب ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ دوسری جانب ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے، دیکھیں وہ کب آئیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے۔ اتنی دیر کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں، بولتے آ جاؤ چلے آگے دیکھو کیا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، جو ڈرامہ کیچر یہ کافی ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے، اس میں دکھاتے ہیں جو بزرگ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی جو گھر والی ہوتی ہے وہ تیار ہو کے کہیں شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تیار ہونے کے بعد اس کو ایک کال آ جاتی ہے، وہ کال پہ مصروف ہو جاتی ہے،
और उधर अंकल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कब फारिग होगी और हम शादी पे चलेंगे। इसकी कॉल आती है, वो लंबी बात कर रही होती है और अंकल की नज़र उधर ही होती है, वो बार बार देख रहा होता है ये कब कॉल करेगी और हम दोनों जाएंगे। इतनी देर में वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसको दोबारा फिर कॉल आ जाती है, वो उसको पता नहीं क्या बता रही होती है फ़ोन पर के। उसके बाद कॉल सुनने के बाद वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद दोबारा फिर कॉल आ जाती है। कॉल पे वो बातें कर रही होती है कि हम थोड़ी देर में आने वाले थे और आप ही कॉल आ गई। कॉल सुनने में वो बताती है कि हम आपकी तरफ ही आएंगे, आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में हम लोग आने वाले होते हैं। दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनके दोस्त वगैरह, वो बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनको आने दो। वो बोलते हैं उनको आने दो, उसके बाद खाना लगाना, खाना हम सब मिल के खाएंगे, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होते हैं। वो बताते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बनाना और तुम उनका इंतज़ार करना और ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर आ रहे हैं। ये सुन के उसकी बेगम खुश हो जाती है, चलो इसने कोई तो अच्छी बात की है, वरना ये तो हर वक्त मुंह बनाता रहता है। वो आपस में खुश होते हैं, बोलते चलो एक कप पानी पिला दो या मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। वो बोलते ठीक है, ये लो कॉफ़ी तो बनी हुई है, मैं अभी आपको कॉफ़ी दे देती हूँ। कॉफ़ी देने के बाद वो देखती है बॉस की तरफ और उसको कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो बोलते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारी आँख के ऊपर तो निशान बना हुआ है, अब क्या होगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं, परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के तैयार होते हैं, दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम लोग खाना खाएंगे। दूसरी जाने में उनके बच्चे होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी है, देखें वो कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। इतनी देर के बाद वो उठते हैं और चलते हैं, बोलते आ जाओ चले आगे देखो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, जो ड्रामा कीचड़ जो काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसमें दिखाते हैं जो बुज़ुर्ग होता है वो बैठा होता है, उसकी जो घर वाली होती है वो तैयार होकर कहीं शादी पे जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद उसको कॉल आ जाती है, वो कॉल पे मसरूफ़ हो जाती है और उधर अंकल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कब फारिग होगी और हम शादी पे चलेंगे। इसकी कॉल आती है, वो लंबी बात कर रही होती है और अंकल की नज़र उधर ही होती है, वो बार बार देख रहा होता है ये कब कॉल करेगी और हम दोनों जाएंगे। इतनी देर में वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसको दोबारा फिर कॉल आ जाती है, वो उसको पता नहीं क्या बता रही होती है फ़ोन पर के। उसके बाद कॉल सुनने के बाद वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद दोबारा फिर कॉल आ जाती है। कॉल पे वो बातें कर रही होती है कि हम थोड़ी देर में आने वाले थे और आप ही कॉल आ गई। कॉल सुनने में वो बताती है कि हम आपकी तरफ ही आएंगे, आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में हम लोग आने वाले होते हैं। दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनके दोस्त वगैरह, वो बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनको आने दो। वो बोलते हैं उनको आने दो, उसके बाद खाना लगाना, खाना हम सब मिल के खाएंगे, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होते हैं। वो बताते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बनाना और तुम उनका इंतज़ार करना और ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर आ रहे हैं। ये सुन के उसकी बेगम खुश हो जाती है, चलो इसने कोई तो अच्छी बात की है, वरना ये तो हर वक्त मुंह बनाता रहता है। वो आपस में खुश होते हैं, बोलते चलो एक कप पानी पिला दो या मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। वो बोलते ठीक है, ये लो कॉफ़ी तो बनी हुई है, मैं अभी आपको कॉफ़ी दे देती हूँ। कॉफ़ी देने के बाद वो देखती है बॉस की तरफ और उसको कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो बोलते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारी आँख के ऊपर तो निशान बना हुआ है, अब क्या होगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं, परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के तैयार होते हैं, दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे
اور کب ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ دوسری جانب ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے، لیکن وہ کب آئیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے۔ اتنی دیر کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں، بولتے آ جاؤ چلے آگے دیکھو کیا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، جو ڈرامہ کیچر جو کافی ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے، اس میں دکھاتے ہیں جو بزرگ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی جو گھر والی ہوتی ہے وہ تیار ہو کے کہیں شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تیار ہونے کے بعد اس کو ایک کال آ جاتی ہے، وہ کال پہ مصروف ہو جاتی ہے اور ادھر انکل اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کب فارغ ہوگی اور ہم شادی پہ چلیں گے۔ اس کی کال آتی ہے، وہ لمبی بات کر رہی ہوتی ہے اور انکل کی نظر ادھر ہی ہوتی ہے، وہ بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کب کال کرے گی اور ہم دونوں جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ دروازہ کھولتی ہے، اندر جاتی ہے، اندر جانے کے بعد اس کو دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کیا بتا رہی ہوتی ہے فون پر کے۔ اس کے بعد کال سننے کے بعد وہ باہر آتی ہے، باہر آنے کے بعد دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے۔ کال پہ وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں آنے والے تھے اور آپ کی کال آ گئی۔ کال سننے میں وہ بتاتی ہے کہ ہم آپ کی طرف ہی آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو، بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ آنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست وغیرہ، وہ بولتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ان کو آنے دو۔ وہ بولتے ہیں ان کو آنے دو، اس کے بعد کھانا لگانا، کھانا ہم سب مل کے کھائیں گے، بس وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج کھانا بہت اچھا بنانا اور تم ان کا انتظار کرنا اور تاکہ وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ یہ سن کے اس کی بیگم خوش ہو جاتی ہے، چلو اس نے کوئی تو اچھی بات کی ہے، ورنہ یہ تو ہر وقت منہ بناتا رہتا ہے۔ وہ آپس میں خوش ہوتے ہیں، بولتے چلو ایک کپ پانی پلا دو یا مجھے کافی بنا کر دے دو۔ وہ بولتے ٹھیک ہے، یہ لو کافی تو بنی ہوئی ہے، میں ابھی آپ کو کافی دے دیتی ہوں۔ کافی دینے کے بعد وہ دیکھتی ہے اس کی طرف اور اس کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے۔ چوٹ لگنے کے بعد وہ بولتے ہیں یہ کیا ہوا، تمہاری آنکھ کے اوپر تو نشان بنا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ بولتی ہے کچھ بھی نہیں، پریشان نہ ہو، بس معمولی سے چوٹ ہے، ہم لوگ ابھی چلتے ہیں۔ جیسے وہ جانے کے تیار ہوتے ہیں، دوسری جانب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب آئیں گے اور کب ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ دوسری جانب ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے، لیکن وہ کب آئیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے۔ اتنی دیر کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں، بولتے آ جاؤ چلے آگے دیکھو کیا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، جو ڈرامہ کیچر جو کافی ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے، اس میں دکھاتے ہیں جو بزرگ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی جو گھر والی ہوتی ہے وہ تیار ہو کے کہیں شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تیار ہونے کے بعد اس کو ایک کال آ جاتی ہے، وہ کال پہ مصروف ہو جاتی ہے اور ادھر انکل اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کب فارغ ہوگی اور ہم شادی پہ چلیں گے۔ اس کی کال آتی ہے، وہ لمبی بات کر رہی ہوتی ہے اور انکل کی نظر ادھر ہی ہوتی ہے، وہ بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کب کال کرے گی اور ہم دونوں جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ دروازہ کھولتی ہے، اندر جاتی ہے، اندر جانے کے بعد اس کو دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کیا بتا رہی ہوتی ہے فون پر کے۔ اس کے بعد کال سننے کے بعد وہ باہر آتی ہے، باہر آنے کے بعد دوبارہ پھر کال آ جاتی ہے۔ کال پہ وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں آنے والے تھے اور آپ کی کال آ گئی۔ کال سننے میں وہ بتاتی ہے کہ ہم آپ کی طرف ہی آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو، بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ آنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست وغیرہ، وہ بولتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ان کو آنے دو۔ وہ بولتے ہیں ان کو آنے دو، اس کے بعد کھانا لگانا، کھانا ہم سب مل کے کھائیں گے، بس وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج کھانا بہت اچھا بنانا اور تم ان کا انتظار کرنا اور تاکہ وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ یہ سن کے اس کی بیگم خوش ہو جاتی ہے، چلو اس نے کوئی تو اچھی بات کی ہے، ورنہ یہ تو ہر وقت منہ بناتا رہتا ہے۔ وہ آپس میں خوش ہوتے ہیں، بولتے چلو ایک کپ پانی پلا دو یا مجھے کافی بنا کر دے دو۔
वो बोलते ठीक है ये लो कॉफ़ी तो बनी हुई है, मैं अभी आपको कॉफ़ी दे देती हूँ। कॉफ़ी देने के बाद वो देखती है बॉस की तरफ और उसको कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो बोलते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारी आँख के ऊपर तो निशान बना हुआ है, अब क्या होगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं, परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के तैयार होते हैं, दूसरी जानब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम लोग खाना खाएंगे। दूसरी जानब उनके बच्चे होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी है, लेकिन वो कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। इतनी देर के बाद वो उठते हैं और चलते हैं, बोलते आ जाओ चले आगे देखो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, जो ड्रामा कीचड़ जो काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसमें दिखाते हैं जो बुज़ुर्ग होता है वो बैठा होता है, उसकी जो घर वाली होती है वो तैयार होकर कहीं शादी पे जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद उसको एक कॉल आ जाती है, वो कॉल पे मसरूफ़ हो जाती है और उधर अंकल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कब फारिग होगी और हम शादी पे चलेंगे। इसकी कॉल आती है, वो लंबी बात कर रही होती है और अंकल की नज़र उधर ही होती है, वो बार बार देख रहा होता है ये कब कॉल करेगी और हम दोनों जाएंगे। इतनी देर में वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद उसको दोबारा फिर कॉल आ जाती है, वो उसको पता नहीं क्या बता रही होती है फ़ोन पर के। उसके बाद कॉल सुनने के बाद वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद दोबारा फिर कॉल आ जाती है। कॉल पे वो बातें कर रही होती है कि हम थोड़ी देर में आने वाले थे और आपकी कॉल आ गई। कॉल सुनने में वो बताती है कि हम आपकी तरफ ही आएंगे, आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में हम लोग आने वाले होते हैं। दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनके दोस्त वगैरह, वो बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनको आने दो। वो बोलते हैं उनको आने दो, उसके बाद खाना लगाना, खाना हम सब मिल के खाएंगे, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होते हैं। वो बताते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बनाना और तुम उनका इंतज़ार करना और ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर आ रहे हैं। ये सुन के उसकी बेगम खुश हो जाती है, चलो इसने कोई तो अच्छी बात की है, वरना ये तो हर वक्त मुंह बनाता रहता है। वो आपस में खुश होते हैं, बोलते चलो एक कप पानी पिला दो या मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। वो बोलते ठीक है ये लो कॉफ़ी तो बनी हुई है, मैं अभी आपको कॉफ़ी दे देती हूँ। कॉफ़ी देने के बाद वो देखती है बॉस की तरफ और उसको कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो बोलते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारी आँख के ऊपर तो निशान बना हुआ है, अब क्या होगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं, परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के तैयार होते हैं, दूसरी जानब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम लोग खाना खाएंगे। दूसरी जानब उनके बच्चे होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी है, लेकिन वो कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। इतनी देर के बाद वो उठते हैं और चलते हैं, बोलते आ जाओ चले आगे देखो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, जो ड्रामा कीचड़ जो काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसमें दिखाते हैं जो बुज़ुर्ग होता है वो बैठा होता है, उसकी जो घर वाली होती है वो तैयार होकर कहीं शादी पे जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद उसको एक कॉल आ जाती है, वो कॉल पे मसरूफ़ हो जाती है और उधर अंकल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कब फारिग होगी और हम शादी पे चलेंगे। इसकी कॉल आती है, वो लंबी बात कर रही होती है और अंकल की नज़र उधर ही होती है, वो बार बार देख रहा होता है ये कब कॉल करेगी और हम दोनों जाएंगे। इतनी देर में वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद उसको दोबारा फिर कॉल आ जाती है, वो उसको पता नहीं क्या बता रही होती है फ़ोन पर के। उसके बाद कॉल सुनने के बाद वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद दोबारा फिर कॉल आ जाती है। कॉल पे वो बातें कर रही होती है कि हम थोड़ी देर में आने वाले थे और आपकी कॉल आ गई। कॉल सुनने में वो बताती है कि हम आपकी तरफ ही आएंगे, आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में हम लोग आने वाले होते हैं। दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनके दोस्त वगैरह, वो बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनको आने दो।
वो बोलते हैं उनको आने दो, उसके बाद खाना लगाना, खाना हम सब मिल के खाएंगे, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होते हैं। वो बताते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बनाना और तुम उनका इंतज़ार करना और ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर आ रहे हैं। ये सुन के उसकी बेगम खुश हो जाती है, चलो इसने कोई तो अच्छी बात की है, वरना ये तो हर वक्त मुंह बनाता रहता है। वो आपस में खुश होते हैं, बोलते चलो एक कप पानी पिला दो या मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। वो बोलते ठीक है, ये लो कॉफ़ी तो बनी हुई है, मैं अभी आपको कॉफ़ी दे देती हूँ। कॉफ़ी देने के बाद वो देखती है बॉस की तरफ और उसको कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो बोलते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारी आँख के ऊपर तो निशान बना हुआ है, अब क्या होगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं, परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के तैयार होते हैं, दूसरी जानिब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम लोग खाना खाएंगे। दूसरी जानिब उनके बच्चे होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी है, लेकिन वो कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। इतनी देर के बाद वो उठते हैं और चलते हैं, बोलते आ जाओ चले आगे देखो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, जो ड्रामा कीचड़ ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं जो बुज़ुर्ग होता है वो बैठा होता है, उसकी जो घर वाली होती है वो तैयार होकर कहीं शादी पे जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद उसको एक कॉल आ जाती है, वो कॉल पे मसरूफ़ हो जाती है और उधर अंकल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कब फारिग होगी और हम शादी पे चलेंगे। इसकी कॉल आती है, वो लंबी बात कर रही होती है और अंकल की नज़र उधर ही होती है, वो बार बार देख रहा होता है ये कब कॉल करेगी और हम दोनों जाएंगे। इतनी देर में वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसको दोबारा फिर कॉल आ जाती है, वो उसको पता नहीं क्या बता रही होती है फ़ोन पर के। उसके बाद कॉल सुनने के बाद वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद दोबारा फिर कॉल आ जाती है। कॉल पे वो बातें कर रही होती है कि हम थोड़ी देर में आने वाले थे और आपकी कॉल आ गई। कॉल सुनने में वो बताती है कि हम आपकी तरफ ही आएंगे, आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में हम लोग आने वाले होते हैं। दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनके दोस्त वगैरह, वो बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनको आने दो। वो बोलते हैं उनको आने दो, उसके बाद खाना लगाना, खाना हम सब मिल के खाएंगे, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होते हैं। वो बताते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बनाना और तुम उनका इंतज़ार करना और ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर आ रहे हैं। ये सुन के उसकी बेगम खुश हो जाती है, चलो इसने कोई तो अच्छी बात की है, वरना ये तो हर वक्त मुंह बनाता रहता है। वो आपस में खुश होते हैं, बोलते चलो एक कप पानी पिला दो या मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। वो बोलते ठीक है, ये लो कॉफ़ी तो बनी हुई है, मैं अभी आपको कॉफ़ी दे देती हूँ। कॉफ़ी देने के बाद वो देखती है बॉस की तरफ और उसको कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो बोलते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारी आँख के ऊपर तो निशान बना हुआ है, अब क्या होगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं, परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के तैयार होते हैं, दूसरी जानिब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम लोग खाना खाएंगे। दूसरी जानिब उनके बच्चे होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी है, लेकिन वो कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। इतनी देर के बाद वो उठते हैं और चलते हैं, बोलते आ जाओ चले आगे देखो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, जो ड्रामा कीचड़ ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं जो बुज़ुर्ग होता है वो बैठा होता है, उसकी जो घर वाली होती है वो तैयार होकर कहीं शादी पे जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद उसको एक कॉल आ जाती है, वो कॉल पे मसरूफ़ हो जाती है और उधर अंकल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कब फारिग होगी और हम शादी पे चलेंगे। इसकी कॉल आती है, वो लंबी बात कर रही होती है और अंकल की नज़र उधर ही होती है, वो बार बार देख रहा होता है ये कब कॉल करेगी और हम दोनों जाएंगे। इतनी देर में वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसको दोबारा फिर कॉल आ जाती है,
वो उसको पता नहीं क्या बता रही होती है फ़ोन पर के। उसके बाद कॉल सुनने के बाद वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद दोबारा फिर कॉल आ जाती है। कॉल पे वो बातें कर रही होती है कि हम थोड़ी देर में आने वाले थे और आपकी कॉल आ गई। कॉल सुनने में वो बताती है कि हम आपकी तरफ ही आएंगे, आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में हम लोग आने वाले होते हैं। दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनके दोस्त वगैरह। वो बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनको आने दो। वो बोलते हैं उनको आने दो, उसके बाद खाना लगाना, खाना हम सब मिल के खाएंगे, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होते हैं। वो बताते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बनाना और तुम उनका इंतज़ार करना, और ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर आ रहे हैं। ये सुन के उसकी बेगम खुश हो जाती है। चलो, इसने कोई तो अच्छी बात की है, वरना ये तो हर वक्त मुंह बनाता रहता है। वो आपस में खुश होते हैं, बोलते चलो एक कप पानी पिला दो या मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। वो बोलते ठीक है, ये लो कॉफ़ी तो बनी हुई है, मैं अभी आपको कॉफ़ी दे देती हूँ। कॉफ़ी देने के बाद वो देखती है बॉस की तरफ और उसको कहीं चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो बोलते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारी आँख के ऊपर तो निशान बना हुआ है, अब क्या होगा। वो बोलती है कुछ भी नहीं, परेशान ना हो, बस मामूली से चोट है, हम लोग अभी चलते हैं। जैसे वो जाने के तैयार होते हैं, दूसरी जाने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम लोग खाना खाएंगे। दूसरी जाने में उनके बच्चे होते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी है, लेकिन वो कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। इतनी देर के बाद वो उठते हैं और चलते हैं, बोलते आ जाओ चले आगे देखो क्या करते हैं।